Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Akhtar Saab. So, today I'm going to be talking about the mysteries of wave function. It's kind of interesting when we switch from classical world to quantum mechanics. The things totally changes. Like for example, if I ask any student about the velocity of this dice, so all of you know that the velocity of this dice is how much? It's 0. So if the velocity is 0, what is the momentum? The momentum is 0. The uncertainty in the momentum of this dice, that is how much? That is 0. That is 0. Similarly, the position of this dice, we can look at it exactly. Now, if we reduce the size of this dice, what will happen? There will be certain level, and when we go below that level, quantum effects will be introduced. This is very important for all of you. And the reason is this, that being a physicist, when we talk about nanomaterials, it's not only size. It's not only size. But along with the size, then we talk about, like that at certain size, when the quantum effects are induced because of the size, this is our understanding of nanomaterials. When quantum effects are induced, then the behavior and the nature of the material totally changes. ये बात मेरी समझ आई है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है for physicist, क्योंकि this makes physicists different than chemists. केमिस्ट से बात करो तो वो कहता है कि 100 नैनोमीटर से छोटा होगा, दैट इज नैनो मटेरियल. हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि साइज, एक स्पेसिफिक साइज, वो स्पेसिफिक साइज कुड बी 10 नैनोमीटर, दैट कुड बी 8 नैनोमीटर, दैट कुड बी 100 नैनोमीटर. So when you reach to that size of the material, जब आप इसको reduce करते हैं, तो reduce करने के साथ साथ when you go to a particular size, इसका nature change हो जाता है, क्योंकि इसमें quantum effect आ जाते हैं और the nature of the material totally changes, and that's why we call them nanomaterial, especially when we talk in physics. Now coming back to my initial experiment. My experiment, I was talking about this dice, that if we reduce the size of the dice, the size of this dice is reduced to the size of electron. इसका नेचर ये रहेगा जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये नहीं रहेगा ना. देखिए कि ये किस चीज की वजह से ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? Because of the size. Because of the size. Now, if I ask you कि इसके velocity या इसके momentum या इसका position, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसको एग्जैक्टली इसका पोजीशन और मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल?
पॉसिबल ही नहीं। और there is uncertainty in it. The things which were certain, now those things are uncertain. Those things are uncertain. And uncertainty is certainty. ये मेरी बात जो है आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? Uncertainty is certainty. अब अगर मैं कहें कि इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये इसको फिजिक्स नहीं आता है, इसको फिजिक्स नहीं आता है। How is it possible that a thing of the size of electron, आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कहें कि वो आप सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं? This is the beauty. This is the beauty of quantum mechanics, and that makes physicists different than most of the other people. Because we look to the things, we observe things, we discuss things. The other people, they can't even think of them. I'm coming, मैं इनिशियली थोड़ा सा ये जो थीम है थोड़ा सा उसके बारे में कुछ एक आध मिसाल दूंगा, और then my main target is I will be telling you how to teach wave function and how to teach. खास तौर पर आप लोगों के पास जो है मतलब ये है कि जब आप उस पर कोई ऑब्जर्वेबल अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिकल, and then you have eigenvalue. आप अगर किसी क्लास में हैं, आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको आप ये चीज़ें कैसे समझा सकते हैं या ये चीज़ें आप लोग खुद कैसे समझ सकते हैं, मेरा मेन टारगेट वो है। लेकिन ये कुछ चीज़ें आई विल शेयर विद यू बीइंग अ फिजिसिस्ट कि आप लोगों को पता हो कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। अभी सर से बात हो रही थी कि मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स की एक ब्यूटी की, तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स द सेम एक्सपेरिमेंट, बट इफ योर reference is changed, your results will be changed. You will not be getting the same answer. You will be not getting the same answer. For example, एक बंदा, मैडम इधर बैठी है, ये मुझे देख रही है ना, मेरे मतलब ये है, ये जो वेस्टकोट है इसका कलर क्या है? काला है। लेकिन अगर ये मैडम इधर से शिफ्ट हो जाए, उधर बैठ जाए, तो शायद ये फिर इसको सफेद लगेगा। अब ये चीज मेरे ख्याल में कहीं पर भी नहीं है। क्लासिकली इसका कोई भी मिसाल नहीं है। क्लासिकली हम कहते हैं कि न्यूटन लॉज अगर आप किसी भी फ्रेम में चले जाएं तो वो चेंज नहीं होता। न्यूटन लॉ स्टेज द सेम, इट स्टेज द सेम। इसका मतलब ये है, द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी, मैं असल में जाऊंगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। आप सब ने पढ़ा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने मेरे ख्याल में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। कोहन तनूजी, कितने लोगों ने उसको पढ़ा? ये रशीद, ये इधर के स्टूडेंट्स में से, अच्छा इधर के स्टूडेंट्स में से, अच्छा बहुत सारों ने पढ़ा। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, इधर के स्टूडेंट से, आप लोग मुझे बताएं कि डिफ्रैक्शन के लिए अपर्चर का साइज कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? As comparable to the wavelength of the light or anything which we. आपने कोहन की किताब पढ़ी? Yes. और कोई बंदा? Comparable to the wavelength of the light which passes through this.
किसने पढ़ाया, किसने ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये कौन किसने पढ़ाई? हाँ भाई रशीद, ये ठीक कह रहे। हाँ भाई ये दूसरा बंदा है, ये क्या ठीक कह रहे? ये सारे गलत कह रहे। अगर किसी को इसका पता नहीं है तो क्या वो क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकता है? नहीं समझ सकता, क्योंकि ये वही चीज है जो आप लोगों ने गलत किताबों में पढ़ा। 9th में गलत पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा, फिर रट्टा लगाया, फिर चीजों को आगे बढ़ता रहा। This is something which is, you know, like the beginning of the book of Cohen Tanuji. Because in Cohen Tanuji it starts from the double slit experiment. And if you don't know double slit experiment, then you don't know Cohen Tanuji at all. बात खत्म। क्योंकि ये बेस है, इसी को लेके फिर वो हो जाता है, फिर आपको वेव फंक्शन पढ़ाता है, फिर समझाता है, फिर वो उसको उसी तरह से कैरी ऑन करता है, और फिर वो आपको बताता है कि वेव फंक्शन होता क्या है। और जिस चीज को हम वेव फंक्शन समझ रहे हैं, whether that's a wave function or not, उसका भी वो जिक्र करता है। फिर वो बताता है कि जिस चीज को हम वेव फंक्शन समझ रहे हैं वो वेव फंक्शन है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो बुनियादी चीज है, लेट मी टेल यू, when we talk about diffraction of light, so when we talk about diffraction of light, तो उसमें एक चीज को याद रखिए कि diffraction जो है that is bending of light। तो bending of light के लिए कोई aperture size की जरूरत है? कोई जरूरत है या नहीं है? मतलब ये है कि अगर कंपेरेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसमें जो है फिर बेंडिंग नहीं होगी, फिर लाइट सीधा सीधा ही गुजरेगा। यस और नो? मैंने स्लिट साइज ये बराबर है, मैंने इसको डबल कर दिया। तो जब मैंने स्लिट साइज को डबल कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अब इसमें बेंडिंग नहीं होगी, लाइट की खत्म हो गई। और अगर इसको मैं 3 टाइम करूं तो फिर क्या होगा? फिर भी बेंडिंग होगी। डाइफ्रैक्शन पैटर्न, डाइफ्रैक्शन पैटर्न, डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास शार्प कब बनता है? ये मेरे ख्याल में I was in the class and I talked to you people and I gave you an assignment, I asked you people to do it and study it. मेरे शागिर्द आप लोग होते तो मैं सबको सीधा करता। ये जो पैटर्न है, मार्कर कुछ नहीं लगते मुझे। So the intensity here is maximum। और इसके साथ ये ब्राइट है, ये सारा ब्राइट है, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस है। और जब आप अवे जाते हैं तो ब्राइटनेस कम होती जाती है और यहाँ पर ब्राइटनेस आपकी 0 हो जाती है। फिर उसमें एक और इक्वेशन मैं बता दूं कि हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। एफ n इज मतलब ये है ऑर्डर है। अब अगर इसमें n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हमें क्या मिलेगा? स्टूडेंट में से कोई बता दें, डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। ये देखो, ये मैं इसलिए कहता हूं, जब हम किताब से नहीं पढ़ते हैं तो चीजें फिर यही होती है।
आप लोगों के जहन में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये आप देखें कि ये चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इधर से जाके ही आप लोग फिर जो है मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, क्योंकि फोटॉन को लेके फिर आगे हम जाते हैं और उसी को क्लासिकली ट्रीट करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उससे आगे जाके उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन पर ये सारे फिनोमेना को हमने अप्लाई करना है। लेकिन समझना ज़रूरी है, समझना। अब ये जो पैटर्न बना, हमने जो पैटर्न बनाया, ये हॉलिडे रिजनिक की किताब कहता है कि बेहतरीन पैटर्न, शार्प पैटर्न हमारे पास तभी बनेगा। आपके पास मोबाइल है, ये नीचे रहे, कितने लोगों ने पैटर्न बनाया है, लिखना मिखना तो फिर भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि देयर शुड बी बुक और हर बंदे के पास नोट्स होनी चाहिए, बिकॉज द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज नॉलेज। हम तो लोग बड़े पैदा करते हैं, डिग्रियां बहुत सारे लोगों को देते हैं, लेकिन उनके पास वो जो डेप्थ होता है, जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, वो उनके पास नहीं होता, और ये ज़रूरी चीज़ है। नॉलेज के लिए हमने ये एक्टिविटी जो है प्लान की है, और इसको समझना, इंतहाई अटेंशन के साथ इसको सुनना, फिर आपस में इसको डिस्कस करना, दिस इज़ द जॉब ऑफ एवरी पर्सन। मैं मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करता हूँ, दिस एक्टिविटी इज़ प्लान्ड फॉर द टीचर्स, लेकिन हमने आप लोगों को भी मौका दिया, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी डिग्री है BS की और MSc, जो बेसिक डिग्री उनके पास है वो आप लोगों के पास भी है। आप लोगों के पास भी उतना नॉलेज होना चाहिए जो इनके पास है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू। कमिंग टू द पॉइंट, ये जो डायफ्रैक्शन है, फिर वही बात मैं करता हूं कि डायफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्लिट साइज। हाँ, कंपेरेबल हो अभी ये आंसर है, ठीक हो गया ना। गलत किताबों ने गलत चीजें पढ़ाई है और उसको हमने इतना पक्का कर दिया ना, कोई कितना भी समझाए हम फिर उस ये कल मैं पूछूंगा तो कल फिर आप लोगों ने यही कहना है कि ये जो है कंपेरेबल, क्योंकि वो रट्टा काफर चीज है, वो निकलता ही नहीं है। नाउ दिस इज द पैटर्न, this is the pattern. Now in double slit experiment what happens? In double slit experiment, let's suppose, अच्छा इसमें मैं एक बात बता दूं, जब हम इसको स्क्वीज करते हैं ना लाइट को, उसका स्प्रेड बढ़ता है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी, हमने पोजीशन को तो, लेकिन उसके साथ उसका मोमेंटम वो फैल जाता है, और इसलिए फिर हम कहते हैं कि when this is equal to, ये जो n1 है, तो फिर आपके पास d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा और d अगर हम बराबर करें तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा, एंड वी गेट 1, एंड थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1। ये हमें क्या देता है, आपका ये जो डार्क है, याद रखे, आप लोग क्या कह रहे थे मुझे, आप लोग मुझे बता रहे थे कि ये ब्राइट है, आप लोग मुझे क्या बता रहे थे कि n1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका डार्क है। अब जब आपने n को, पहले डार्क को n1 n2 n3 and so on, अब जब मैंने n को 1 कंसिडर किया, पहला डार्क मेरा आया, लेकिन मैंने कहा कि स्लिट साइज को मैं क्या करता हूं, एग्जैक्टली इक्वल टू
द वेवलेंथ। तो फिर मैंने देखा कि जब वो मैंने किया तो ये जो डार्क आ रहा था ये बिल्कुल एग्जैक्टली एट 90 डिग्री आ रहा है। एग्जैक्टली किधर आ रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि लाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर इक्वली, एवरीवेयर। अब उसके साथ फिर अगर मेरे पास 2 स्लेट्स हो, मैं आप लोगों के किताब की तरफ भी आता हूं कि किताब बुनियादी तौर पर किताब जो लिखता है उसको पता नहीं है, उसको फिजिक्स का नहीं पता है, बस वही एक चीज उसने रट्टा लगाई हो गया। अब देखिए जब किताब बात करता है वो आपको ये बताना चाहता है, ये इस तरह का एक पैटर्न होता है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो डार्क है और ब्राइट जो है ना, ये हमने पढ़ा है कि जब डबल स्लिट में होते हैं तो स्लिट साइज के बाद फिर जब हम बात करते हैं कि डार्क पैटर्न और ब्राइट पैटर्न की इंटेंसिटी एक जितनी होगी, साइज भी एक जितना होगा। वो तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास देखें इसके ऊपर लाइट पड़ता है, अगर लाइट हर जगह एक जैसे पड़े, यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क उसमें ना हो, तो फिर इधर का जो पैटर्न है, इधर का जो पैटर्न है और इधर का पैटर्न है, इनमें कोई फर्क ही नहीं होगा। इसलिए जब उन्होंने कंपैरेबल की बात की, कंपैरेबल में वो आ गए ख़ास तौर पर जो हमारे जहन में एक इंटरफियरेंस का फिनोमेना है ना, एक स्पेसिफिक देखिए इंटरफियरेंस। अगर आप साइज को डी और लैम्डा बराबर रखें तो भी इंटरफियरेंस होगी, अगर डी को आपके लैम्डा के 2 टाइम्स रख के, 4 रख के, 10 रख के, तब भी इंटरफियरेंस होगी। लेकिन एक स्पेसिफिक केस में ऐसा होता है कि चूंकि हर जगह लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, और जब लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी होती है इसलिए आपके पास जितनी भी फ्रिंजेस बनते हैं सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो जो किताबें आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ी या FSC में पढ़ाई गई या वो चीज़ें जो हमने रट्टा लगाया, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात है, उस बंदे ने या किताब वाले ने उसको जनरलाइज कर दिया। नाउ अब अगर ये स्लेट साइज में बढ़ा दो फिर क्या होगा? स्लिट साइज अगर मैं बढ़ा देता हूं तो नेचुरली फिर भी इंटरफियरेंस होगी, लेकिन फिर आपके पास जो है क्या बनेगा? आपके पास डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का पैटर्न आएगा, मतलब बेंडिंग भी हो रही है और बेंडिंग के साथ ये एक दूसरे के साथ इंटरफियर भी हो रहा है, तो उसका जो पैटर्न बनेगा वो इसी तरह से होगा, लेकिन इसके दरमियान में ये आ जाएंगे। ये डबल स्लिट मतलब ये है अगर आप उसका डाइफ्रैक्शन लेते हैं जिसमें इंटरफियरेंस होती है, तो उसी तरह से उसके अंदर आप देख रहे हैं इंटेंसिटी डिके भी हो रही है और दरमियान में इंटरफियरेंस की वजह से वो फ्लक्चुएट भी हो रही है। ये मैं डबल स्लिट की बात करता हूँ। अभी तक कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर है सब? यस सर, ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये आफ्टर ऑब्जर्वेशन है कि हम क्वांटम फिजिक्स में कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है ये किसी फिनोमेना के फाइनल रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। यार देखो अभी तो आप बहुत आगे जा रहे हैं, पहले तो इसको तो समझे ना, समझ गए? पहले हम डबल स्लिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर जब इसको समझूंगा तो फिर मैं जाऊंगा और फिर वही जो हमने बात की कि जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो जाती है ना, तो ये इसी एक्सपेरिमेंट को मैं आगे लेके जाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ऑब्जर्वर किधर हो तो उसको फिर क्या नज़र आएगा। बुनियादी मकसद मेरा यही है कि अगर मैडम इधर बैठी है या मैडम इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है, वो मैं तभी समझूंगा कि पहले तो मुझे बंदे का तो पता होगा कि बंदे ने मतलब ये है, तो उसके लिए हमें तो पहले फिज़िक्स तो आना चाहिए, तो उस फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जब अंडरस्टैंड किया देन वी गो एंड देन वी चेक, और फिर उसमें हम फिर जो है मिसाल ले लेंगे। लेकिन यहाँ तक मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि देखें कि आप लोगों ने देख लिया
कि हमारे पास देखें कि अगर दो स्लिट्स है, तो दो स्लिट्स अगर इसको मैं बंद करूं तो मेरे पास इस तरह का पैटर्न आएगा। अगर इसको बंद करके इसको खोल दूं मेरे पास इस तरह का पैटर्न आएगा। दोनों को इकट्ठे खोल दूं तो मेरे पास इस तरह का पैटर्न आएगा और इनके अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है ऑसिलेशन होगी। क्लियर है ये सारी बात? मसला तो नहीं है ना? कमिंग टू द पॉइंट, अब मैं इस पोजीशन पर हूं कि आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि अगर ऑब्जर्वेशन का फ्रेम चेंज हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन के फ्रेम्स के चेंज होने के साथ आपका जो है मतलब ये है कि सारे रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। अब देखिए कि जो दोनों पैटर्न है क्वांटम मैकेनिक्स में, इधर से फिर एक और बात आ जाती है, कोहन-तनूजी आप लोगों ने पढ़ा है, और कोहन-तनूजी ने यहाँ पर पार्टिकल की बात की है, और कोहन-तनूजी ने फिर जब इसको उठाया तो फिर उसने इसमें बात की है कि इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर भी यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है। किसी को याद है वो एक कैसे करता है? एनी पर्सन? इसी एक्सपेरिमेंट से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन वेव है? किसी को याद है? हाँ, क्या मतलब? जब हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास जो सोर्स है वो लाइट है तब हमारे पास इंटरफेरेंस हो जाता था नॉर्मली। लेकिन जब पार्टिकल को हम मानकर मतलब इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे थे तब हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा था। ये कौन कहता है? सर ये कोहेन की बुक की ये नहीं, आपकी बात शायद ठीक भी हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है लेट्स सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन शूट देम वन बाय वन। इफ आई शूट वन इलेक्ट्रॉन, मेरे पास यहाँ पर जो है डबल स्लिट्स है, इफ आई शूट वन इलेक्ट्रॉन हियर, वो कैसे लगेगा? एक डॉट लगेगा ना, जिस तरह गोली लगती है। दूसरा आएगा तो दूसरी गोली लगेगी, तीसरा आएगा। वो कहते हैं इफ यू प्रोलॉन्ग द प्रोसेस, when you repeat the experiment again and again and again and again and again, then you will find कि आपके पास फिर इंटरफियरेंस पैटर्न, वो सबको जब आप जमा करोगे यू विल गेट इंटरफियरेंस पैटर्न। और इसी को लेकर फिर वो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने शूट क्या किया है? वन बाय वन किया है इलेक्ट्रॉन को शूट। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब पास होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन तो एक था, हाउ इट इंटरफियर्स विद इटसेल्फ। तो नेचुरली देन दे से दैट दिस इलेक्ट्रॉन is associated with waves, and this is the waves which passes through the slits, and those waves they interfere with each other. So in the same experiment, if you look in initial stage, अब इसकी मिस्ट्री कहाँ पर आ गई? मतलब ये है कि आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में आपने देख लिया, अगर आपने मतलब ये है कि एक पैटर्न ये बनता था, दूसरा ये बनता था, अगर दोनों को हम खोल देते थे तो हमारे पास इस तरह का पैटर्न बनता था, ये 1+2, 1+. Now, if we look to the same experiment, we open both the slits together. We open both the slits together, but we are observing ये जो हमारे पास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, we will be looking to this pattern. आप लोगों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
लोगों के पास यही पैटर्न आएगा, बोथ ऑफ देम दे इंटरफियर विद ईच अदर। ये एक स्लेट वाले और दूसरा स्लेट वाले, दे इंटरफियर विद ईच अदर एंड यू विल बी गेटिंग अ पैटर्न लाइक दिस। बट इफ द मैडम shifts from here to there, instead of looking to this, the madam start watching ये जो हमारे पास जो slits है वही मैडम है। सर उसने जो है रेफरेंस ऑब्जर्वेशन उसका चेंज हुआ। जब उसका रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ, थिंग्स टोटली चेंज and now it will look like this. This will look like this. अब देखिए कि क्लासिकली आपके पास इस तरह की कोई कहानी आपको नहीं मिलेगी कि आप जब जो बंदा रेफरेंस है उसका रेफरेंस को जब चेंज करते हैं तो उसके साथ उसके चेंज के साथ साथ आपका सारा रिजल्ट्स जो है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल कहानी मेरे ख्याल में है बड़ी लंबी, मैं ज़्यादा लेंथ में नहीं जाऊँगा। टाइम कितना है मेरे पास कि मुझे फिर अंदाज़ा हो? आधा घंटा। तो मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा मिस्ट्रीज़ में अब जाने की बजाय ये बेहतर होगा कि मैं आप लोगों को कोई ऐसे टिप्स बता दूँ जो एक फ़िज़िक्स का स्टूडेंट जो है जिसने डेवलप किए, जो समझे और जो दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, जो आप लोगों को हेल्प भी करेगा और जब आप लोग इसको पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स को तो आप इसको फिर पढ़ा भी सकेंगे। कुछ चीज़ें मैं और भी मेरा दिल करता है क्योंकि ये जो कोहन तनूजी का पहला चैप्टर है, दिस इज़ माय फेवरेट। फिज़िक्स अगर किसी चीज़ से मैंने मज़ा लिया ज़िंदगी में ना, वो यही चैप्टर है। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल से इसको मैंने सीखा है, एक एक चीज़ को सीखा, क्योंकि आप लोगों की तरह का तो कोई नहीं था कि मुझे डबल स्लिट का बताता कि डबल स्लिट ये होता है और डबल स्लिट ये होता है और ये होता है। आप लोगों को मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। ये किताब भी आप लोगों को पढ़ाई गई, किताब आप लोगों के पास है, आप लोगों ने फिर भी तकलीफ़ तो नहीं की उस तरह से। एक चीज़ मैं आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक और चीज़ मैं शेयर करूं कि जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज अ वेव फंक्शन। फिर वही बात है, कोहन तनूजी सबने पढ़ा है, इज इट अ वेव फंक्शन? है नहीं है? हाँ, आप लोगों ने किताब तो पढ़ी है। मैं देखिए कि किताब से बाहर मैं नहीं बोलता। रशीद किताब में लिखे इसका डिटेल जिक्र है। हाँ, this is not a wave function. Why this is not a wave function? Because हम कहते हैं कि साई स्क्वायर हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? वो तो फाइनाइट वैल्यू होगी या फाइनाइट नहीं होगी। अगर फाइनाइट होगी, अगर आप इसको जो है इस तरह इसका स्क्वायर कर ले और इसको आप इंटीग्रेट कर दें, dx से करते हैं या d, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये a स्टार हो गया और ये चला गया 0 1 हो गया, 1 हो गया ना। a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको निकाल लें, या अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल है तो भी। अब इसको देखें, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। आप लोगों का कोहन तनूजी की किताब में उसने इतना प्यारा आपको जो है साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 तीन वेव फंक्शन लिए हैं, फिर तीनों को ऐड किया है। इस तरह का लिए है, जिस तरह का ये है ना, साई 1 साई 2 साई 3 सबको ऐड करके फिर आखिर में आपको फिर उसका एक रिजल्ट दिया है।
आप फिर वो आपको दिखाते हैं कि यार अब ये डिफाइंड है, ये इसको कहते हैं, ये जो चीज है साई स्क्वायर डी एक्स, दिस शुड बी डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड नहीं होगा तो ये फंक्शन वेव फंक्शन हो नहीं सकता। हमारे पास एक प्लेन वेव है, वेव के अंदर बहुत सारे वेव है, उसको हम ले सकते हैं, लेकिन वेव फंक्शन नहीं है। अब अक्सर गलत तो नहीं कह रहे, आपके वेव फंक्शन के दरमियान में बहुत सारी वेव्स हैं, उनमें से एक वेव ये है साई, लेकिन इसको आप वेव फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल। ये हमारे पास ये जो है इसका कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, ये चीज़ हमारे पास वेव फंक्शन बन ही नहीं सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग जो किताब पढ़ रहे हैं वो तीनों को जब उसने किया, आप लोग तो इसकी तो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ये वेव फंक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन वेव फंक्शन नहीं है। ये वेव फंक्शन, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स तो हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत किताब आप लोगों के पास है, इतनी अच्छी किताब आप लोगों के पास है कि उसको ये इसमें कोई शक नहीं है कि दैट्स अ डिफिकल्ट बुक। लेकिन आपने किताब पढ़ी, आपने भी इधर मुझसे पढ़ी, तो एक एक चीज याद है आपको? हाँ भाई, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई की या नहीं पढ़ाई की? ये स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी, ये सारी चीजें, ये मैं इसलिए कहता हूं कि व्हेन वी गो विद अ डिग्री इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर। हमारे पास लोग इंटरव्यू में आते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, इधर सर बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू इन्होंने, सर ने फिजिक्स के लोगों को की, और मेरे ख्याल में दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि लोगों को फिजिक्स नहीं आती है, फिर अंधों में खाने राजा को हम उठाते हैं। फिर वही बात होती है कि यार चलो किसी को तो रखना है, तो किसी को तो रख लें। हम चाहते ये हैं कि इधर से जब आप निकले, आपका लेवल ऐसा हो कि आप जिधर भी जाए तो उधर कोई कहे कि भाई हमें ये चाहिए। और हमारे अपने फैकल्टी का ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का सबको पता हो। मैं फैकल्टी पर स्ट्रेस करता हूँ, इन चीज़ों को डिस्कस करें आपस में, इस पर बार बार आप लोगों की डिस्कशन होनी चाहिए। किताब को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं अमेरिका गया तो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग ये था कि जो प्रोफेसर आता है तो पहली चीज़ किताब में इस पर ये किताब पढ़ोगे। हम तो एनुअल सिस्टम के फारिग थे। एनुअल सिस्टम का मसला मेमोराइजेशन के बगैर वो हो नहीं सकता था, इतनी लंबी चीज़ें, इक्वेशंस। और आप लोगों के पास तो सेमेस्टर सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है। उस सेमेस्टर सिस्टम को हम फिर जो है एनुअल सिस्टम में लेके उसको खींचते हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान है, और स्टूडेंट भी उससे खुश होते हैं, क्योंकि हम ये मेमोराइजेशन की कहानी से निकल नहीं पा रहे हैं चीज़ों से। तो एनीवे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो है श्रोडिंगर कैट का भी थोड़ा सा हम जिक्र करें। श्रोडिंगर कैट का किसी को पता है? हाँ, और स्टूडेंट्स में से किसी को पता है या नहीं पता है? हाँ, कहानी सुना दे श्रोडिंगर कैट, ये थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, बता दे। खैर बेसिकली हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पर वो इंक्लूड हो जाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ से था, बोहर और इंसान के दरमियान का एक कसर चल रहा था कि फिर वहाँ से क्या का आइडिया आ गया। तो उसने एक बात किया, और वहाँ पर एक कैट था
उसने उसके साथ क्या किया, पायसन रख दिया, दूध रख दिया गिलास में, उसमें पायसन डाल दिया, उसके साथ क्या कर दिया, पार्टिकल डिटेक्टर रख दिया। तो फिर उसने कहा कि इसका स्टेट हमारे पास क्या है, वो सुपरपोजिशन में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास पार्टिकल डिटेक्ट है तो वह फिर क्या हो जाएगा, वो दूध गिलास क्या हो जाएगा, वो हेड हो जाएगा, वहाँ से दूध निकल जाएगा और बिल्ली उसके पीले के तो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। अगर पार्टिकल डिटे नहीं कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो दूध नहीं पिएगी, क्या जिंदा रहेगा। तो उसके बाद क्या क्यू बीटा गया, तो अगर अल्फा हमारे पास 0 1 हो या बीटा का हमारे 1 0 हो, तो 0 किसकी रहेगा, दूध हमारे पास क्या हो, वो वहाँ से नहीं गिरा हो। अच्छा, सिंपली ये कहता है कि आपके पास बॉक्स है, बॉक्स पे दूध है, दूध के साथ अल्फा का सोर्स है। ये लंबी कहानी है। सिंपली ये है कि बॉक्स आपने बंद की, आपने बॉक्स खोला, बिल्ली जिंदा है कि मुर्दा? यही क्वेश्चन है ना। आप लोग बात समझ गए या नहीं समझे? अब देखें कि जहर वाला दूध है, अल्फा सोर्स है, वो उधर हेड करेगा, वो हेड किया तो वो हथौड़ा गिरेगा, दूध का गिलास तोड़ेगा तो फिर नेचुरली दूध निकलेगा, दूध बिल्ली उसको पिएगा। जब बिल्ली पिएगी तो वो तो मरेगी। लेकिन बाहर के बंदे को क्या पता है कि अंदर क्या हो रहा है? कोई पता है? बाहर का बंदा क्या कह सकता है? बाहर का बंदा क्या कह सकता है? या तो बिल्ली क्या है, जिंदा है, या अब ये जो प्रोबेबिलिटीज है, जब हम बात करते हैं साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, और इसमें फिर आगे जाते हैं, इसको एक और चीज का नाम देते हैं, आप लोगों की किताब में उसका जिक्र है, कोलैप्स ऑफ अ वेव फंक्शन। कोलैप्स ऑफ अ वेव फंक्शन कहते हैं कि जब आपने बॉक्स को खोल दिया तो फिर क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड कोलैप्स ऑफ अ वेव फंक्शन। तब तक हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे थे कि इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी है, इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी है, बट वंस वी आर डन विद द एक्सपेरिमेंट तो फिर क्या होता है? वो तो सर्टन हो जाता है और आपका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिजल्ट्स है, वो आपको मिल गया। फॉर एग्जांपल, इसका एक और मिसाल दूं, आपके पास लाइट आ रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट, आप इसको किसी पोलराइजर से गुजारते हैं। ये लाइट थोड़ा सा जो है, ये लाइट आ रहा है और ये आपके पास एक पोलराइजर है, इससे हमने लाइट को गुजारा। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि ये ब्लॉक होगा या पास होगा? ठीक है ना? दोनों की प्रोबेबिलिटीज है या नहीं है? दोनों की प्रोबेबिलिटीज है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोहन तनूजी की किताब है, ये इसको लेता है। दिस इज अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। आपके पास EX है प्लस EY, इसके साथ एक के साथ साइन थीटा लगाता है, दूसरे के साथ cos थीटा लगाता है या कुछ, ये जो है आपकी प्रोबेबिलिटी इधर से निकलती है। ये जो पार्टिकल आपके पास फोटॉन आ रहा है, फोटॉन जो है उसके दो स्टेट्स है, या X है या अगर X है तो पास होगा, Y है तो फिर क्या होगा? अब देखें कि वो जो है फिर कहता है कि दिस गिव्स यू योर वेव फंक्शन, बट वंस दिस इज पास थ्रू दिस, जब इधर पहुंच जाता है तो फिर आपका वेव फंक्शन क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, सर्टन हो जाता है। आपको पता चलता है इधर इट्स ब्लॉक्ड और इट इज। इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं कि यहाँ पर हम बात करते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? cos स्क्वायर थीटा I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए जब आपका लाइट आता है, when theta approaches to 0 or when theta approaches to 90, तो क्लासिकली अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 तो आपको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू I नॉट। इसी तरह से अगर आपके पास
ये पाई बाय 2 होगा, आई क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास एक फोटॉन आ रहा है एंड थीटा इज इक्वल टू 0 और अप्रोचेस टू 0 और थीटा अप्रोचेस टू पाई बाय 2, क्या आप इस पर मैलस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट द इलेक्ट्रॉन विल पास। मतलब ये जब हम बात करते हैं और इसी मतलब ये है, इसको लेके जाते हैं, मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग बात, मतलब जब हम मिस्ट्रीज की बात करते हैं तो एक और मिस्ट्री, बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन पर एक पोलराइजर अप्लाई किया, ये जो एक्स और वाई में जो है स्पिन अप और स्पिन डाउन में करता है, आप लोग मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इन द जी डायरेक्शन। जब आपने जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और आधे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब देखें कि जो ऊपर चले गए हैं +1/2, अब अगर इस पर अगेन मैं जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये सारे अप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सारे अप जाएंगे ना। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस पर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा एक्स डायरेक्शन में, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट वैसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या जो बता रहा हूँ? आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और स्पिन, और मैग्नेट के साथ उसका ताल्लुक है। आपने पहले जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जेड डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपको पता चला, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था आपको पता चला कि या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिस तरह पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में। अब अगर इसके बाद जो ऊपर वाला है उस पर फिर मैं जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ऊपर ही जाएगा। अगर मैं कितने भी अप्लाई करूंगा तो मैं इसके वेव फंक्शन के बारे में सर्टेन हूँ, हो गया। अगर इसके बाद मैं इस पर एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में जो है क्या होगा? आधे ये स्प्लिट हो जाएंगे, आधे एक तरफ चले जाएंगे और आधे, लेकिन इनिशियली हमने क्या किया है? जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव को लिया है, जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव को लिया है, फिर उसके बाद हमने एक्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और फिर मैं इस पर इस एक्स के बाद इस पर फिर मैं जेड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। बात समझ आई नहीं है? कंफ्यूज तो नहीं हुए? कंफ्यूज हो गए? यार देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मैंने जेड डायरेक्शन में, ये ऊपर चला गया, ठीक है। जब ये ऊपर चला गया उसी पर अगर मैं फिर जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी मरतबा भी अप्लाई करूंगा ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये +12 है। लेकिन इसके बाद मैंने ऐसा किया कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में ये प्लस पर अप्लाई किया तो ये इसको तकसीम करेगा, ठीक है। जब ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ इसके बाद फिर मैंने एक्जेड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। आप लोग अब बात समझ गए? अब क्या होगा? फिर स्प्लिट, हाँ पॉसिबल। क्वांटम मैकेनिकली होगा क्या? क्लियर कट बात यह है कि ये जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वो उसकी मेमोरी को टोटली वॉश आउट कर देता, खत्म। अभी जब आपने फिर जेड में अप्लाई किया तो फिर वो तकसीम होगा, आधे ऊपर और आधे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो मेरे ख्याल में कि आपके पास एक ही पार्टिकल है वो खुद अपने साथ इंटरफियर हो रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब एक था तो एक लग रहा था पार्टिकल की तरह का, लेकिन जब आपने तादाद को बढ़ा दिया तो फिर आपने देख लिया कि ऑल ऑफ देम गिव यू इंटरफियरेंस पैटर्न।
टेक्निकली तो एक था, तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल खुद अपने साथ इंटरफियर हुआ और उसके साथ हम वेव की तरफ चले गए। बहरहाल मैं थोड़ा सा अब क्विक जाता हूँ। नाउ आई एम गोना गो एंड टेल यू वेव फंक्शन की जो कहानी हो गई काफ़ी हद तक हो गई, लेकिन अब मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि हाउ यू टीच क्वांटम मैकेनिक्स में। एक हमारे पास है ऑपरेटर जो ऑब्जर्वेबल है, बस ठीक 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 ठीक। मुझे याद आता है सर ने कभी भी हमने किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया कि बोर्ड साफ करे, हमेशा सर खुद जो है बोर्ड को साफ करते थे। सॉलिड स्टेट सर ने हमें पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाया, मेरे ख्याल में और भी कुछ शागिर्द सर के बैठे इधर, तो बहुत अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाया है कि, लेकिन बोर्ड कभी भी सर ने, कितनी भी आप कहे सर कहते नहीं, किसी को ऐलान ही नहीं करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये ऑपरेटर है और ये वेव फंक्शन है और ये हमारे पास आइगन ठीक है। मैं एक अच्छा मतलब ये है, इस पर सोचता रहता हूँ और उसकी वजह ये है कि काफ़ी अर्सा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता रहा हूँ, तो फिर बंदा मतलब ये है कि फिर सोचता है यार पढ़ाऊँ कैसे, क्योंकि क्लासिकल चीज़ों की तो आप मिसालें देते हैं, क्वांटम का फिर मिसाल बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप सोचते हैं कोई ना कोई कहानी तो फिर आपने बनानी पड़ती है जो लोगों को समझ आए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा है, आप उस छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है बच्चे का, सबसे पहले उसको बैलेंस पर रख देता है, उसका वेट कर देता है। ऐसा करता है या नहीं करता है? करता है, नहीं करता है? ये कहता है नहीं करता है। ये हाँ? इसको नहीं पता है। अच्छा नहीं देखिए नहीं लगेगा होंगे। हाँ? ये अभी नहीं लगेगा। अच्छा नहीं, बहरहाल चले, इसको ये पता होना चाहिए। खुद डॉक्टर के पास जाए तो भी करता है ना, डॉक्टर के पास चले, खुद चले जाओ, पहला काम वो क्या करता है यार, वजन करता है। वजन करता है या नहीं करता है? फिर वो आपका हार्ट चेक करता है, फिर बीपी चेक करता है, सारी चीज़ें हो जाती है। फिर थर्मामीटर दे देता है, यार इसका टेम्परेचर इतना है। अब देखें कि आपकी जो बॉडी है, दिस इज अ वेव फंक्शन, क्योंकि इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है, हाइट की भी है, आपके वेट की भी है, आपकी टेम्परेचर की भी है या नहीं है, आपकी ब्लड प्रेशर की भी है। बात मेरी समझ आई या नहीं आई? अब देखें कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम किस चीज में, तो फिर जिस चीज में भी हम इंटरेस्टेड है, देन वी अप्लाई दैट ऑपरेटर, वी अप्लाई दैट ऑपरेटर। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द हाइट, तो सबसे पहले जो है उसका ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ जो एसेट होता है, तो वो जो है उसका हाइट फिर नोट कर देता है। फिर उसके बाद फिर क्या करता है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो है, देखे कि नाउ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अनदर, मतलब ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर है। तो उसके लिए फिर उसने एक
एक ऑपरेटर अप्लाई किया, और जब उसने वो ऑपरेटर अप्लाई किया तो एट द एंड ऑफ द ऑपरेटर व्हाट ही गॉट अ वैल्यू, यार ये तो इतना इसका टेम्परेचर है। बनने पर तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, उसके साइज पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डजंट चेंज एट ऑल, वही रहता है। लेकिन जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। ये गलत तो मैंने नहीं कहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े सारे लोग बैठे हैं। ये मिसाल अच्छा है या अच्छा नहीं है? इससे बेहतर कोई मिसाल हो सकता है? इसके बावजूद अगर किसी को ये इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से वो रिलेट कर लिया। ऐसा ही है, ऐसा ही। असल में क्वांटम मैकेनिक्स को तो आप रिलेट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ क्लासिकल कहानी तो बनानी होगी, क्योंकि हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। हम कहते हैं कि आपने इधर गोली चलाई और इधर दो मतलब ये है होल्स है, और गोली दोनों से गुजरी। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको पिक करने के लिए नेचुरली फिर आपने कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उसको आप जब रिलेट करते हैं क्लासिकल, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन की जो कहानी हमने शुरू की, साई का जब हमने किया साई 1 ए एक्स प्लस वाई ए वी, मतलब ये है, या आप अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका आपके पास आ जाता है स्पिन हाफ प्लस और स्पिन हाफ वाई, पता नहीं उसको कैसे लिखते हैं, बहरहाल इसी तरह से आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आप देखें कि आपके पास जो फोटॉन आ रहा है, फोटॉन इज अ सुपरपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप पोलराइजर लगाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो या एक्स में था या वाई में था। ये जो रशीद ने कहानी की कि वो जो है या तो जिंदा या मुर्दा, लेकिन जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा। जब वेव फंक्शन कोलैप्स ही नहीं होगा तो फिर आपको कोई पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये है कि वो सुपरपोजिशन के स्टेट में होगा। ये वो क्लासिकल मिसाल है, मतलब ये उसका था। तो ये चंद एक चीज़ें थी मेरे ख्याल में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। चीज़ें मतलब बहुत सारी है, मतलब फिर वही मैं बता दूं कि ये सारा पहला चैप्टर जो है उसके कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उसमें है बहुत कुछ, और कोई ऐसी बात नहीं है मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अगर आप लोग इस पहले चैप्टर को पढ़ोगे तो शायद आप लोग मुझसे ज़्यादा फिर इस पर लेक्चर दे सकोगे। साहब एक ये आपने कहा ये इफेक्ट नहीं होगा, एक टर्म है जिसको कहते हैं डॉक्टर इफेक्ट। डॉक्टर तो अक्सर मरीज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर उतना नहीं रहता है, फिर ज़्यादा वो अनसर्टेनिटी आपका ऑपरेटर जो है वो तो ज़्यादा होता है ना, वो अनसर्टेनिटी। सर ये बिल्कुल सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर क्या होता है, या लो होता है या कुछ तो हो जाता है। दैट इज अनसर्टेनिटी। नहीं सर, अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, हम ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर ने तो अपना काम कर दिया। नहीं, रीडिंग तो वही लेगा ना सर, वो उसका तो मैकेनिकल सिस्टम, उसके इसके साथ क्या कोई काम नहीं है कि ये बीवी से झगड़ा करके आया है या इसको मैडम डांटती है या इसका ग्रेड खराब आया है, ये काम नहीं करता है मैकेनिकल सिस्टम का इसके साथ। डॉक्टर ब्लड प्रेशर बिफोर द डॉक्टर एंड देन आफ्टर, तो उसका कोई ये टर्म है, ये यूज होती है डॉक्टर इफेक्ट। ये अनसर्टेनिटी होगी, इसको ऐड करना होगा। सब प्रैक्टिकल है प्लस
तो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड दिस इज पर्पज़ यही था कि हम इस तरह की इंटरेक्शन फिजिसिस्ट के दरमियान में हो, चीज़ों को हम देखें। आज मैं बोल सकता हूँ, आप लोग मुझसे बेहतर बोल सकते हैं, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। हम आए हैं एनिमल सिस्टम से, और आप लोग मेरे ख्याल में जो लोग हैं, आप लोगों के जो उस्ताद हैं या प्रोफेसर थे, या जो सिस्टम आप लोगों को मिला हुआ है, ये बेहतरीन सिस्टम है, इससे फ़ायदा लें। जब आप लोग फ़ायदा लेंगे तो यू पीपल कैन explain things maybe much better than me.